Hello everyone, myself Dr. Madhuryan Srinivas, your dermatology faculty in this wonderful Cerebellum Academy. So here in this video, I have Dr. Saima Yasmin with me, who secured 171 marks in this July FMG 2024 examination. So please introduce yourself, Dr. Saima, about where did you do your MBBS from? Hello everyone. I'm Dr. Saima, finally doctor. I got 171 in this attempt, July attempt, and I got 135 in my previous attempt. I did my MBBS from Ohio State University, Kyrgyzstan, and currently I'm waiting for my internship. So first of all, very hearty congratulations for the jump in the marks from 135 to 171. And like you were telling before this interview we have started, so you are aiming for 200 plus marks. So, but because of some silly mistakes, you told that you have lost some of the marks, but that is fine. So, can you please tell, so how did you manage to improve the score from the first attempt 135 to 175, which is a great score in itself? Please, can you briefly tell? Yes, sir. So first of all, I when I scored 135, that was my mistake because at the end part, in my last attempt, I didn't got sufficient time for my self-study and revision. That's why I was lacking in that point. Otherwise, it was so easy to score 150 in that Jan attempt. Sorry, sir. Okay. The video got disconnected. Yeah. Yeah. So I mainly focused on my weak areas. So I was very clear that I'm not going to repeat that same mistakes dubara this time. That's Huh. why I made a very sequential plan for myself that I also compiled with Mission 200 plus, Mission 200 plus videos also. Uh, so first of all, I gave one GT after that exam also. So I analyzed that my last GT or the first GT before preparing for my second attempt. That first GT, which are my weak areas or which subject are my weakest. So I'm going to focus on that particular subject at the very beginning, so that my concepts gets like clearer over the time. I was aiming for 4 revisions. At the end, I could clear like 3, and I would say 3.5 revisions before I could appear for this July attempt. Then second one, I focused on my weak areas, and then along with that, I gave my custom modules. Like per day, I divided my time according to that because I want to give same amount of time to my theories as well as I want to practice that same amount of questions. It was like 50-50 balanced. So my day was divided like in the evening, I would attend the Mission 200 plus classes. And in the morning time, I would apply that concept in my MCQs. In that manner, at the end, I could get the overview of the day, like the whole compiled concept at the end of the day. So I did that. Second one, custom module. Then third, whenever I got time, I gave GT. GT was my like topmost priority, that I would give GT, I would analyze that. So in GTs, I was going to analyze my weak points, weak areas, same as I was saying in the beginning. So weak areas were like for me the Rattawala areas were weak, like micro, obviously, then pharma. But my concept was very strong with my clinical subjects, surgery, OVGs, and prof were my favorites. So in my last attempt also, I did profs very clearly with Mission 200 plus only. And this attempt also, I revised the same notes, but with the new Mission 200 plus videos.
and I was aiming for very high marks, but unfortunately I got 171. I count that जो भी होता है अच्छे के लिए होता है type. And at the end, the most important thing was for me to clear the exam and to make my parents feel proud, which I did already. That's why. These are the main बढ़िया things, sir. बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर सैमा, आपने जो बोला पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सारे बता दिया। जो जस्ट समराइज करने के लिए, जो पहले अटेम्प्ट में मिस्टेक्स किया उनको आइडेंटिफाई करना, वीकनेसेस जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रेंथ्स में बदलने के लिए बार बार रिवाइज करना। एंड ऑल्सो आपने जो किया है वो है प्लान किया और स्ट्रक्चर किया आपका प्रिपरेशन को। इस बार जो आपने क्लासेस सुने उसको फॉलो अप किया एमसीक्यूज के साथ, उसको आपने पढ़े नेक्स्ट डे, और आपने ध्यान दिया जीटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जीटीज को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। और आपने एक मेंशन किया कस्टम मॉड्यूल्स आपने प्रैक्टिस किया। सो एंड आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिवीजन जो है, आपने सोचा कि 4 बार करनी है, बट या 3.5 मतलब कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, बट वॉट एवर Yes, रिविजन sir. अगर आप प्लान करोगे एग्जाम के पहले पूरे करने के लिए, 4 5 वॉट एवर इट इज, द नंबर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लान करो, डेज रखो रिविजन के लिए, एंड इफ यू डू द प्लानिंग देन ओनली आप रिवाइज कर पाते हो फाइनल एग्जाम के पहले जो भी आप करना चाहते हो। तो या एंड ऑल्सो हाँ, रट्टा मारने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने बोला कि वो वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथ बनाए। सो क्या आप बोल सकते हैं कि Yes. वीक सब्जेक्ट्स जो रट्टा मारो टाइप मेमोरी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपने रिवीजन के पीरियड में कैसे फोकस किया, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर आपने दिया? जी सर। सो मेनली मेरे वीक सब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्या किया था क्लास में, तो सर मिशन 200 के फैकल्टीज इतने बढ़िया है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो निमोनिक्स सारे प्रिपेयर थे, एवरीथिंग देयर वाज गिवन। सो आई फॉलोड दैट ओनली, एंड जिनमें मुझे थोड़े निमोनिक्स भी टफ लगे थे तो उसमें मैंने अपने एडिशन डाले, अपने निमोनिक्स डाले। तो मैंने निमोनिक्स भी अपने रेगुलर लाइफ से मिलते जुलते ही बनाया था कि मैं, मुझे अगर कुछ बायसेस का कुछ याद नहीं रह रहा है जो पीएसएम का एक क्वेश्चन था, तो मैंने उसको जो कि अपने किसी कैरेक्टर में डाल दिया था कि मेरे लाइफ का ये कैरेक्टर है तो इनको ये वाले ये बायस करते हैं। और ये ट्रिक मुझे सर, मेरे बहुत एक स्पेशल फ्रेंड डॉक्टर सौरभ राय, ही क्लियर्ड इट इन द जैन अटेम्प्ट विद a स्कोर ऑफ 218। सो उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि आप खुद, जरूरी नहीं है कि आप जो भी टफ लग रहा है उसको भी मगअप करते जाओ, उसको आप देखो कि कैसे कैसे इजी वे में कट डाउन कर सकते हो। तो एट द एंड अगर 80% भी आपको याद रह रहा है, बेनिफिशियल हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। सो हाँ, जो पॉइंट्स आपने बोला है, जस्ट टू समराइज, जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं निमोनिक्स के हेल्प से, मदद से आप याद रख सकते हैं। और यस सर। हाँ, आप खुद के निमोनिक्स, आपके खुद के स्टोरीज जो होते हैं वो भी आप बना सकते हैं, उसके मदद से आप याद रख सकते हैं बिफोर द एग्जाम। क्या आप बोल सकते हैं कि जी बिफोर द एग्जाम जो रिवीजन होता है उसमें आपने क्या मतलब टेक केयर किया है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे डिफिकल्ट हो सकते, तो इनको मैं रिवाइज कैसे जी करूं, इसका कुछ आपने प्लान किया था? जी सर। जो सर बिग सब्जेक्ट्स थे, मैं बहुत क्लियर थी कि ये बहुत ज्यादा एक पोर्शन कहीं ना कहीं होल्ड करता है मार्क्स के बेसिस पे। दो अभी एनबीए जो है वो फॉलो नहीं करता है उस हिसाब से, बट हाँ कुछ हद तक वो रहता है कि सर्जरी, ओबीजी, पीएसएम एंड मेडिसिन, ये चंक मतलब एक होल्ड करता है। तो इनको मुझे बहुत अच्छे से करना था, मेन नोट्स से 2 बार रिवाइज करना था इनको। बाकी उसके बाद में जो मैराथन हुए उससे मैंने सप्लीमेंट किया फिर से इनको, एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस अलोंग साइड चलता रहा। तो एट द एंड जो था, मेरे कहीं ना कहीं 2 बार मेन नोट्स के रिवीजन हो गए थे, एक बार मैराथन का क्लास के साथ ही हो गया था। जो मैं नहीं कर पाई सर, वो एट द एंड मैराथन के बाद में जो हमें 1 वीक मिला था उसके अंदर में मैंने लगभग कर लिया था 60-70%।
सो बिग सब्जेक्ट्स में मेरा ये चीज फोकस था। बाकी मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि कहीं ना कहीं जो प्रॉफ्स है वो गेम चेंजर हो सकता है। तो इस बार भी मैंने अपने प्रॉफ्स को स्ट्रांग ही रखा बिगिनिंग से। बट हाँ, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा जो था कि 2 बार मैं मेन नोट्स का रिवाइज करूंगी, वो चीज नहीं किया। मैंने एक बार ही जो है मेन नोट्स का अच्छे से कंसेप्ट बना लिया फिर से, क्योंकि सर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था तो इजी था इस बार। तो मैंने ऑलरेडी उनको रिवाइज कर लिया अपने नोट्स के साथ में, देन मैराथन सेशन किया। एंड देन एट द एंड वीक वीक जो था उसमें मैंने प्रॉप्स के भी रिवीजन मारे, ताकि मुझे वो जो मेमोरी है, रिसेंट मेमोरी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करती है। तो उसने मुझे किया भी सर, क्योंकि मैं जो पिक्चर्स देख के गई थी धर्मा के तो सर आपको पता ही है, इस बार बहुत इजी क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं जो पढ़ाया जाता है कॉमन से। किसी ने अगर एक भी बार धर्मा अच्छे से पढ़ लिया होगा तो सारे क्वेश्चंस उसके सही गए होंगे उसमें। देन धर्मा के साथ साथ माइक्रो को भी वो लोग जोड़ देते हैं, तो उसके भी थे, तो माइक्रो वाले भी वो पोर्शन हो गए, धर्मा वाले भी पोर्शन हो गए। लिंक करके पढ़ने से सर कहीं ना कहीं बहुत बेटर रहा मेरे लिए। जो मैंने फील किया कि अगर मैं शायद तक सिंपल अप्रोच रखती उस चीज का कि मैं सब्जेक्ट वाइज बस एक ड्राईनेस के साथ मैं पढ़ती जाऊंगी, तो वो मेरे लिए सही नहीं रहता, क्योंकि वैसे सर मेरे दिमाग में बैठता नहीं है। कंसेप्ट वाइज पकड़ा मैंने कि कंसेप्ट क्लियर करना है, देन जो सारी चीजें हैं मुझे एमसीक्यू में एनालिटिकल तरीके से, क्योंकि 1 मिनट में सब कुछ अपने दिमाग के अंदर आपको एब्जॉर्व करके फिर सोच के एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। तो उसलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया एमसीक्यूज का। देन एट द एंड जो मगब वाली चीजें थी वो मैं एंड वीक के लिए भी थोड़ा लास्ट रिवीजन जो था उसमें मैंने फोकस किया मगब वाली चीजों में। एंड प्रॉफ्स थे सर लास्ट वीक में। So to just to summarize what Dr. Saima told, so try to keep whatever volatile topics subjects are there at the very end of the preparation, and try to always read the subjects in an integrated fashion, not just as a separate subject. So if micro is there, so viral infection, bacterial infections, so what are the manifestations in the skin, they can integrate and they can ask you a clinical question. So if you know both the things, you should be able to apply this and come to a viral diagnosis or the treatment whichever the examiner tries to ask you. So very great insights, Dr. Saima, about this. So if I want to ask, so आपके जो favorite subjects थे और faculty थे, और क्या आप किसी को thank you बोलना चाहते हो, तो can you can please tell that in the सर यस सर। सो सर मैंने मिशन 200 प्लस जब लिया था वो मेरा जब डिग्री मुझे मिल गया था एट द एंड कॉन्वोकेशन के बाद में ही मैंने तुरंत लिया था, जस्ट बिकॉज द फैकल्टीज मैंने लिया था। तो मतलब ऑलरेडी मेरे फैकल्टीज वो सारे फेवरेट थे। बाकी जब मैं आई और उनका जब ये प्रोग्राम देखा तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे स्टूडेंट के साथ में वो मैच हो गया। सो मेरे, मैं बोलूंगी मोस्ट फेवरेट फैकल्टी में से सर गोगा सर है, अमृत नाश्ता सर है, रैना मैम है, सर आप है, जैनब बोरा मैम है। तो आपको कहीं ना कहीं मैंने इवन इसीलिए जब आप ग्रुप में मैसेज करते हो आप एक्टिव रहते हो तो वो भी चीज इंटरेक्ट करते हुए गोगा सर भी करता है वो चीज। तो मुझे इंटरेक्शन बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको तुरंत ही मैंने वो क्वेश्चन सेंड किए थे सर, दिस वन वाज रॉन्ग रिकॉल एंड दिस वन वाज करेक्ट रिकॉल, दैट्स व्हाई। yes. I do remember कि immediately after the exam, Dr. Saima actually sent me the questions, the recall. So yeah, that interaction is very crucial for the student, because you can ask the doubt and we will give you the answer very quickly. So we are available on Telegram, Instagram. So you can reach out to us, and definitely agar Goga sir, Amrit Nashta sir, just definitely I will convey your thanks about whatever you have learned with the faculty which you have specified, Dr. Simon. And any important suggestion which you want to give to your future FMG aspirants. So in the December, those who are going right after 20 in the 2025. So what will be that most important thing which you will tell to your juniors or your seniors also who are writing since so many years? सो सर
for me the main important thing was to calming keep calming my nerves throughout this whole journey. That was my main target, कि मुझे अपने दिमाग को इतना शांत एंड इतना फोकस्ड रखना है कि कोई नहीं, अगर किसी दिन मेरा खराब भी जाता है, मैं थोड़ा पढ़ूंगी लेकिन सेटिस्फाइड रहूंगी। वो चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने खुद के ऊपर फर्स्ट ट्रस्ट रखो, देन उसको जब आप जा रहे हो कोई प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, ये दिमाग में रख के मत चलो कि मैं अगर 100% कर पाऊंगी तभी मैं बेस्ट हूँ। जरूरी नहीं है। आप अगर 80%, 60%, 70% भी करते हो, आपके हिसाब से आप कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल पे हो, क्योंकि डे टू डे आप अपने आप को एक न्यू वर्जन में देखते हो, एक न्यू वेरिएंट में देखते हो अपना ही। आप रोज बेटर करते जाओगे। आप अपने ऊपर ट्रस्ट मत खोना कभी भी। सब लोग आपको कोई ना कोई ऑब्वियसली जो है सजेशंस दे ही पाएंगे कि पढ़ना है, रिवीजन करना है, ये करना है, लेकिन अपने आप को काम रखना थ्रू आउट दिस पीरियड कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर रिपीटर्स। हम लोग एक बार हार चुके हैं, तो वहां से हमें अपनी ताकत को रिटर्न लाना है, अपना स्ट्रेंथ को जो है एक जगह इकट्ठा करना है, फिर उसके थ्रू हमें थोड़ा थोड़ा हर डे बाय डे वर्क करते जाना है। एट द एंड हो जाता है, कर लेते हैं। एक दिन का जरूरी नहीं है कि आप 12 से 13 घंटे बैठ के बस पढ़ ही रहे हो तो वो डे आपका जो है प्रोडक्टिव निकले। किसी दिन अगर आपका 6-7 आवर्स भी हुआ, लेकिन उसमें आपका एक्टिव रिकॉल है, थोड़ा बहुत आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उसी में अगर आप सेटिस्फाइड हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका 100% प्रोडक्टिव डे बन जाता है। पॉजिटिव रहना हमेशा। कोई इतना लोड नहीं है, एग्जाम है, निकल जाएगा, आज नहीं तो कल। अपने आप को शांत रखना मेन है, तो प्रिपरेशन भी होगी, रिजल्ट भी आएगा अच्छा। Yeah, very true, Dr. Saima. Whatever Dr. Saima told, just to summarize, focus, have a plan, progress, keep your calm till the exam day. You are going to do it. Never give up, never give up. Trust yourself, trust whatever hard work you are doing. So if there are some days you are unable to do 100% of your work, give 50, 60, 70%, whatever it is possible, give it. But don't completely leave a day. So you will have some satisfaction that अरे मैंने ये कर दिया है, आज मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं पढ़ाई हो पाएगी, but yes, I have done this. So with that satisfaction, if you go to the next day, you are going to definitely do great as the days progress. By the time you reach near the exam time, you are going to accumulate so much of knowledge within you that you are going to get the confidence enough that you are going to pass. Not only pass, you are going to get great score in the final Great exam. score, obviously, sir. Yes. So, Sir, I want to include one thing, yeah, please. because it's not related to exam, but because I am actually, I am a Cerebellum subscriber, and I was actually, when I was in OSH, I took that subscription in PG only, PG section I took. So I got everything for free. Like everything was included in this package. Yeah, so I'm going to extend that. And sir, I have high hopes on me that if I start now, little day by day, I am going to crack NEET also, NEET PG, and maybe Definitely. INI also. Yeah, that's why. Definitely. So just आप अगर ये सेम पेस बरकरार रखेंगे और जो भी आपने प्रिपरेशन अब तक किया, डेफिनेटली बोल सकते एफएमजी इज ऑन par or even more difficult than NEET. So if you do the rest of the little bit minor topics, if you include, then you are going to definitely cover the NEET syllabus, INSCT syllabus, and yeah, within 1 year you are going to be so much content that you are going to even crack the NEET and INSCT exam also. And you're Yes, again sir. going to be live in this interview after 1 year With after cerebellum, NEET. yeah. Yeah, with Cerebellum Academy for sure.
So thank you so much, Dr. Sam Asmin, for all these valuable insights. Yes, for all your future endeavors, and continue your preparation, continue being calm, and trust yourself. Never give up. Focus, plan. You're going to achieve the great rank in the NEET exam also. Thank you so much, sir. Thank you Thank you. so Thank much you, sir. to you actually, and to the whole Cerebellum team for arranging such a sweet and nice conversation with you. And sir, really, Cerebellum team is working so hard day and night. I know that because I am very active on Telegram. The official team, even the uh, tech team also, right? They provide everything early, like the Yes. PDFs and everything, या up to date सब चलता है वहां पे. So इसीलिए अगर कोई अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हो ना, टू माय जूनियर्स एक्चुअली, कि आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको बना बनाया मिल जाए, बस आप उसको ग्रैब कर पाओ, तो सेरेबेलम कहीं ना कहीं बहुत एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप इसको चूज करो. क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, टाइम टेबल बनाना नहीं है आपको, फैकल्टी स्टॉप वाली है सारी, सारे आपको पीडीएफ दिए जाएंगे जो आप नोट करते जाओगे, एंड सो इजी टू नोट, सारे मेन मेन पॉइंट्स होते हैं. एंड इवन सर आपका पीडीएफ उसमें तो मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी दी हुई है, बस आपको हाईलाइट करते जाना है. दैट्स Yes. द थिंग आई लव्ड अबाउट योर पीडीएफ, बिकॉज ऑल द पिक्चर्स वेर इंक्लूडेड इन दैट टू. सेम साइड में ही पिक्चर था. कोई अगर हंसी वाले मीम्स भी है सर, वो भी आपके साइड में ही थे, जो मैं अभी भी एक नहीं भूल सकती हूँ. आपका जो था नीवस वाला, ये जो बैकर्स नीवस था, जो एक एक था उसमें बेकार, मैं जब भी बाल काटने जाती हूँ मुझे बेकार ही क्यों नाई मिलता है, बार बार मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो शक्ल भी मुझे याद है एंड बाल वाला वो सीन भी मुझे याद है. तो यही सारी चीजें जो होती है ना, इजी बनाते हैं ग्राफ्स करने को हमें. तो Exactly. इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जाओ सारे सेरिबेलम के थ्रू, अगर हो पाए पॉसिबल, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो. यस, So thank you so much, all the थैंक यू students सो who have मच. watched. I hope you have got great, valuable insights. So please do use of these points whichever were discussed in this video, and you are also going to achieve great success. Okay. All the very best. Thank you so much. Happy learning.